السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر۔ متحدہ ضلعوں میں بونال تہوار کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ بانسواڑہ شہر میں منعقدہ بونال تہوار میں اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی نے شرکت کر کے عوام کو دی پرخلوص مبارکباد۔ سابقہ وزیر اعظم و سائنسدان ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی خدمات ناقابل فراموش۔ زیڈ پی چیئرمین وٹھل راؤ نے زیڈ پی دفتر میں موجود عبدالکلام کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کی۔ ٹی آر ایس حکومت غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عہد کی پابند۔ بانسواڑہ حلقہ اسمبلی میں نئے راشن کارڈ تقسیم پروگرام سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچرام سرینواس ریڈی کا خطاب۔ ہریت اہرم کے تحت دیے گئے ٹارگٹ کو مکمل کرنے کے لیے ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت جاری۔ ایم بی ٹی ترجمان امجد اللہ خان کی ضلع کو آمد۔ اقلیتی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے جلسے سے کیا خطاب۔ اراضی رجسٹریشن کی قیمت میں اضافے کے خلاف ریاستی سطح پر ریئل اسٹیٹ تاجرین کا پرزور احتجاج۔ ضلع کے کئی قائدین حیدرآباد میں ہوئے گرفتار۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریاستی وزیر بلدی نظم نقش کے ٹی آر کی انسانی ہمدردی کی جیتی جاگتی مثال کچھ اس طرح سے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم نقش کے ٹی آر نے راجنا سری سلا دورہ مکمل کر کے حیدرآباد کو جانے کے دوران سڑک پر حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو ان کی اپنی گاڑی میں بٹھا کر مقامی ہاسپٹل تک پہنچا کر انسانی ہمدردی کی بہترین مثال قائم کر کے پھر ایک مرتبہ ثابت کر دیا کہ وہ عوام کی خدمت کو تا حیات تک جاری رکھیں گے۔ ٹی آر ٹی 2017 اردو میڈیم کی 535 مخلوعات جائیدادوں کو ڈی ریزرویشن کیا جائے۔ ٹی آر ٹی 2017 کے اہل امیدواروں کے ذریعے میرٹ کے اساس پر تقررات کیے جائے۔ قائد مجلس بچاؤ تحریک جناب امجد اللہ خان صاحب سے تلنگانہ اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کا ساتھ دینے کی اپیل۔ تلنگانہ اردو ٹرینڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے وفد نے آج نظام آباد میں قائد مجلس بچاؤ تحریک جناب امجد اللہ خان صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے اس بات کی نمائندگی کی کہ ٹی آر ٹی 2017 اردو میڈیم کی 535 مخلوعات جائیدادوں کو ڈی ریزرویشن کرتے ہوئے ٹی آر ٹی 2017 کے اہل امیدواروں کے ذریعے تلنگانہ سب آرڈینیٹ سروس رول 22 سب سیکشن 2 سب سیکشن ہیچ کے تحت میرٹ کے اساس پر تقررات کروانے میں اردو اساتذہ کا تعاون کرے، جس پر جناب امجد اللہ خان صاحب نے اس بات کا تیقن دیا کہ وہ اردو اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے تیار ہے۔ ساتھ ہی اس بات کا وعدہ بھی کیا کہ ممکن ہو تو قانونی لڑائی سے بھی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ غور طلب ہے 2017 ٹی آر ٹی میں جملہ 900 مخلوعات جائیدادوں کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں صرف 385 جائیدادوں پر ہی تقررات کیے گئے۔ باقی 535 جائیدادوں پر دستیاب امیدوار نہیں ہونے کی وجہ سے ان جائیدادوں کو روک دیا گیا تھا، جس پر تلنگانہ اردو ٹرینڈ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں نے 3 سال سے زائد وقفے سے مختلف وزراء و سیاسی قائدین سے نمائندگیاں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں سپٹمبر 2019 میں ایوان اسمبلی کے دوران وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ 535 جائیدادوں پر بہت جلد لمیٹڈ ریکروٹمنٹ
इम्तिहान मुनक्किद करेंगे और इन जायदादों को आम जिम्मे में तब्दील कर दिया जाएगा। 6 दिसंबर 2019 को वजीर तालीम मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा ने जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब व मजलिस के अरकान असम्बली महकमे तालीम के आला ओहदेदारों के हमरा एक खुसूसी इजलास मुनक्किद किया गया और एक प्रेस नोट के जरिए भी जल्द से जल्द उर्दू मीडियम के 535 जायदादों पर लिमिटेड रिक्रूटमेंट रखने का ऐलान किया था, लेकिन 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है मगर अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन साल 2018 से अभी तक हुकूमत व सियासी कायदीन को इस मसले के हल की जानिब तवज्जो दिलाई मगर सिर्फ तयक़ुनात और झूठे वादे के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। 9 अप्रैल 2018 को बोधन में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान जनाब हरीश राव साहब और साबिक़ा रुकने पार्लिमान कविता मैडम को नुमाइंदगी की गई। इनके अलावा जनाब शकील आमिर साहब, जनाब महमूद अली साहब, वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा व दीगर विज़रा से नुमाइंदगियाँ की गई। साथ ही साथ जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब व जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब व मजलिस के तमाम रुकने पार्लिमान से भी नुमाइंदगियाँ की गई। इसके अलावा महकमे तालीम के ओहदेदारों से भी इस मसले के हल की नुमाइंदगी की गई मगर अभी तक ये मसला बरफदान बना हुआ है। इंदिरा पार्क, SCERT तेलंगाना और प्रगति भवन पर एहतजाज भी किया गया मगर वजीर आला जनाब KCR साहब उर्दू असातिज़ा के मसाइल को हल करने में अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं, जबकि वजीर आला जनाब KCR साहब ने मुख्तलिफ शोबों में 50,000 से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया। नए रिक्रूटमेंट के ऐलान से कबल TRT 2017 के 535 जायदादों का मसला तातुल का शिकार होने का खदशा है। इस ज़िमन में तेलंगाना स्टेट उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन ने वजीर आला जनाब KCR साहब और वजीर तालीम मोहतरमा सबिता इंद्रा रेड्डी साहिबा से ये मुतालबा किया कि वो लिमिटेड रिक्रूटमेंट को मनसूख करते हुए तेलंगाना सब ऑर्डिनेट सर्विस रूल 22 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन H के तहत तमाम 535 जायदादों को डी रिजर्वेशन करते हुए TRT 2017 के अहल उम्मीदवारों के जरिए मेरिट के असास पर तकर्रुरात कर दे। इसी सिलसिले में तेलंगाना उर्दू ट्रेंड टीचर्स एसोसिएशन ने कायदीन मजलिस बचाओ तहरीक जनाब अमजदुल्ला खान साहब से इस मसले के हल के लिए ताउन करने की अपील की। काबिल गौर बात यह है कि वज़ीर आला जनाब KCR साहब ने 9 नवंबर 2017 को ऐवान असम्बली में इस बात का ऐलान किया था कि वो उर्दू मीडियम की तमाम 900 जायदादों को भर्ती करने का ऐलान किया था। उर्दू मीडियम स्कूल पर वक्त मुकर्ररा पर असातिज़ा के तकर्रुरात न होने की वजह से बच्चों की तालीम शदीद मुतासिर हो रही है और बच्चा मजदूरी के फीसद में इजाफा हो रहा है, जबकि RTE के मुताबिक 10% से ज्यादा जायदादें मकलूआ न हो। इस मौके पर शेख फारूक अली, मोहम्मद मोइजुद्दीन और लड़कियों की कसीर तादाद मौजूद थी। नहीं करना चाह चीफ मिनिस्टर साहब का ऐसा हिसाब है, तालीम की महबूबा के वादे रहते हैं जो कुछ दे देता हूँ, 12% दे देता हूँ, लिमिटेड दे देता हूँ, सब दे देता हूँ बोलते करते नहीं हम। ठीक है, वी विल फाइट लीगली, इंशाल्लाह करें। एक और एक टेक्निकल इशू बोलूँ, ये जो उर्दू ऑफिसर इनके तकर्रुरात भी ऐसे सेम हमारा जो कंडीशन था, इनको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को बुला के ये पोस्टों को डी रिजर्व करके उनको जब पहले भी अपॉइंटमेंट करेंगे। हाँ कर सकते तो हमारे पास नहीं कर सकते। वो क्या था, वो जो कैंडिडेट्स की लिस्ट गई थी ना, वो लिस्ट किसके थ्रू गई थी वो मालूम करो। और ये ठीक है इंशाल्लाह। एक मिनट, तेलंगाना सबऑर्डिनेट सर्विस अमजदुल्ला खान खालिद MBT तर्जुमान की निजामाबाद आमद मिली बेदारी और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से खिताब। मजलिस बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतिमाम मिली बेदारी और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान से प्रोग्राम अब्दुल रहमान गेस्ट हाउस नज़द अरसप अली बैंक बोधन रोड निजामाबाद में मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से MBT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना की अलहदगी के बाद मुसलमानों को हुकूक दिलाने में TRS हुकूमत गुज़िश्ता 7 सालों में नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबेजात में भी अखलतों को नज़रअंदाज किया गया। इन्होंने मुसलमानों को मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में ज़िले सदर अब्दुल कादिर साजिद, जनरल सेक्रेटरी मीर बशारत अली, टाउन सदर MA बासित और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ने भी अपने मुफीद मशवरे अमजदुल्ला खान खालिद को दिए। को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। पहला लॉकडाउन और दूसरा लॉकडाउन होने के बाद में
सबसे ज़्यादा मुतासिर अगर कोई कौम हुई है तो वो अक़लियतें और दलित तबका। इतनी बुरी हालत हो गई, आप यकीन नहीं मानेंगे कि रात के 2 बजे तक 3 बजे तक, कल रात में मैं जब 3:30 बजे अपने मकान पर रियासत तेलंगाना हुकूमत सब्सिडी चावल पर हर साल 2766 करोड़ रुपए खर्च करने असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इंकशाफ। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने वर्णी मंडल के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा नए राशन कार्ड मुस्तहिक अफराद खानदान में तकसीम अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR की ज़ेरे क़यादत हुकूमत गरीब अवाम के लिए फलाह बहबूद के लिए इक़दामात करते हुए तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात के तहत फ़वाइद पहुँचाने का इजहार करते हुए कहा कि सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के लिए राशन कार्ड, डबल बेडरूम मकानात, आसरा पेंशन और किसानों के लिए रायतु बीमा व दीगर स्कीमात के तहत फायदा पहुंचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत सब्सिडी चावल पर हर साल 2766 करोड़ रुपए सब्सिडी पर खर्च करने का इजहार करते हुए रियासत तेलंगाना में अमल पैरा स्कीमात को दीगर रियासतें अपनी रियासतों में रूबे अमल में लाने का इंकशाफ किया। 20 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఇచ్చేవాళ్ళు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 4 కిలోల బదులు ఒక్క వ్యక్తికి 6 కిలో చేశాం. 20 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఇవ్వనటువంటి నిబంధన తీసివేసి ఎంతమంది ఉంటే అన్ని 6 కిలో చొప్పున घर में जितने आदमी है तो उतने लोगों को 6 किलो के हिसाब से रुपये को किलो चावल देते हैं. पहले क्या था, एक आदमी को 4 किलो देते थे. घर में जितने भी लोग रहे तो भी 20 किलो से बढ़ के चावल नहीं मिलता था. अब KCR साहब आने के बाद एक आदमी को 6 किलो. रियल एस्टेट डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद जिया अहमद का हैदराबाद में एहतजाज, पुलिस की गिरफ्तारी व रैली। निजामाबाद रियल एस्टेट डेवलपर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद जिया अहमद ने अपने वफद जिनमें रियाज मलिक, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, JK पार्ट्स, मोहम्मद आमिर, इलियास, मोहम्मद मोइजुद्दीन, अब्दुल रहीम, जानी मियाँ और दीगर ने रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे के खिलाफ मुनक़िदा हैदराबाद में धरने में शिरकत की। गर्ज से पहुंचे जहां पर हैदराबाद की यूनियन के कायदीन ने सुमेश कुमार सेक्रेटरी तेलंगाना से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करने के सिलसिले में प्रगति भवन पहुंचे और इन कायदीन को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेते हुए बाज़ कायदीन ने राम गोपाल स्टेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया तो बाज़ कायदीन को मुशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बातज़ा शाम 5 बजे शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया। क़ब्ल अज़ी रियल एस्टेट यूनियन के कायदीन ने एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि रजिस्ट्रेशन फीस में 100% इजाफा किया गया जो अवाम पर भारी बोझ है, लिहाजा फौरी तौर पर फीस में कमी की जाए। इसी सिलसिले में रियासती सेक्रेटरी तेलंगाना से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी करना चाहते थे, लेकिन इन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जिससे कायदी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि जमहूरियत में हर एक को अपने हक के लिए लड़ने का हक है, लेकिन रियासती हुकूमत हम लोगों को हरासा करते हुए पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार करते हुए मुंतकिल कर रही है, जो जमहूरियत का मजाक है। हरितहरम मकसद को इस साल फिलफूर मुकम्मल करते हुए खाली अराजी पर पौधे लगाने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि 5 किस्म के अमराज से मुतालिक जिले में अगस्त के 2 तारीख से हेल्थ वीक सर्वे मुनक़िद किया जा रहा है। इसी तरह से हरितहरम को 100% मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान खुसूसी दिलचस्पी लेने के लिए अहकामात जारी किए और बताया कि अगस्त 2 तारीख से महकमे सेहत के ओहदेदारान घर घर का दौरा करके मुकामी अवाम की सेहत से मुतालिक मसाइल की तफसीलात हासिल करने के साथ साथ कोविड-19 केसेस, TB, HIV व दीगर अमराज में मुब्तला अफराद खानदान की तमाम तरीन तफसीलात हासिल करके नए YAP में इंदराज करने की बिना पर मर्ज से मुतासरा मरीज हॉस्पिटल से रुजू होने पर तिब्बी इमदाद फराहम करने में आसानी होने का इंकशाफ किया। रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने आर्य कटिका संगम की जानिब से मुनक़िदा बोनाल त्योहार में की शिरकत। बांसवाड़ा शहर की
आर्य कटकर संगम की जेर निगरानी में बड़े पैमाने पर पोचमा तली बोनाल त्यौहार का इनेकाद अमल में लाने पर रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने बोनम सर पे उठाकर रियासती रैली में शिरकत की और आर्य कटकर संगम इमारत की जानिब से शुरू करदा पोचमा मंदिर तक मुनक़िद की गई। इस मौके पर दीगर मेंबरान ने कहा कि गुज़िश्ता 20 साल से बोनाल त्यौहार को जोशो खरोश के साथ इनेकाद अमल में लाया जाता है और हर साल रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी बोनाल त्यौहार में शिरकत करने का इंकशाफ किया। तेलंगाना में कोरोना वायरस टीकों की खिलाफ बेशतर मराकिज बंद, पहली खुराक लेने वालों को दूसरी खुराक का इंतजार। रियासत में कोरोना वायरस टीकों की दोबारा किल्लत पैदा होने लगी है और दूसरी खुराक के लिए ज़ायदा 30 लाख शहरी मुंतज़िर है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में दूसरी लहर के बाद कायम किए गए टीका अंदाजी मराकिज में से बेशतर मराकिज को बंद किया जा चुका है और कहा जा रहा है कि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान इन मराकिज के दोबारा आगाज के कोई इम्कानात नहीं है। बताया जाता है कि जो लोग पहली खुराक हासिल कर चुके हैं वो दूसरी खुराक के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई मराकिज पर दूसरी खुराक दस्तयाब नहीं है। रियासत तेलंगाना में 24 जुलाई तक मजमूई तौर पर 1 करोड़ 40 लाख अफराद को टीका दिया जा चुका है, लेकिन इनमें 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा अफराद ने सिर्फ पहली खुराक हासिल की हुई है और माबाकी अफराद के दोनों खुराक मुकम्मल हो चुकी है। मुल्क भर में 21 जून से मरकजी हुकूमत ने 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम शहरियों को मुफ्त टीका फराहम करने का ऐलान करते हुए तमाम रियासतों में टीका अंदाजी मुहिम का आगाज किया था और मुल्क की बेशतर रियासतों में जोरों शोरों के साथ टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई थी, लेकिन पहली खुराक के साथ ही अब दूसरी खुराक की किल्लत की शिकायत मौसूल होने लगी है। ऐसी सूरत में रियासत तेलंगाना में हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा टीकों के हुसूल पर तवज्जो देने की जरूरत है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि टीके की फराहमी और तखसीस मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही है, जबकि रियासती महकमे सेहत की जानिब से रियासत को दरकार टीकों की तफसीलात फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के खानगी व दवाखानों में कोविशील्ड कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक 5 फराहम की जा रही है, जबकि जिन मुकामात पर मुफ्त टीका दिया जा रहा है वहां कोविशील्ड के अलावा कोवैक्सीन के टीके दिए जा रहे हैं। बताया जाता है कि महकमे सेहत की जानिब से फैसला किया गया है कि सरकारी महकमे जात में अब तक टीका हासिल न करने वाले मुलाजमीन की निशानदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा और इन्हें फौरी तौर पर टीका अंदाजी के इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा आम शहरियों को भी टीके की फराहमी को आसान बनाने के लिए इक़दाम को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है और मरकजी हुकूमत को रियासत की तलब से वाकिफ करवाते हुए पहले खुराक हासिल करने वालों के लिए दूसरी खुराक का फौरी इंतजाम करने और पहले खुराक के मुंतज़िर शहरियों के लिए टीकों की फराहमी के इक़दाम की ख्वाहिश की गई है। भीमगल मंडल में आरमूर गांधी के तौर पर मशहूर व मारूफ मोहम्मद अब्दुल हसन को अवामी नुमाइंदों ने शालपोशी करके शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। भीमगल मंडल में आरमूर गांधी के तौर पर मशहूर व मारूफ मोहम्मद अब्दुल हसन को तियार जिले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर मोहित व माइनॉरिटी मेंबरान ने शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल हसन ने कहा कि बिला लिहाज मजहब व मिलत अम्बेडकर व गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए ऑटो अवाम की खिदमत में इस्तेमाल करने के साथ साथ माजूरीन में ठेला बंडी की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। मुझे हिदायत दिया, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे मरे दम तक गुरूर तकब्बुर घमंड मैं कर रहा हूँ बोल के नहीं आना। मैं कर रहा हूँ, मैं एक मक्खी मच्छर, अल्लाह तू हिदायत दिया, मैं कर रहा हूँ और कुछ नहीं। और मैं सुलह हुदैबिया से 1965 में कुरान की हर आयत, सूरह रहमान, सूरह यासीन सब अपनी जगह है। बालकुंडा अलख असम्बली एरगटला मंडल मौजे तुर्ती के मुकामी सरपंच व नायब सरपंच ताहिर ने बारिश से मुतासरा बीटी रोड व कलवट के ताल्लुक से रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी से की नुमाइंदगी। जिले निजामाबाद बालकुंडा अलख असम्बली एरगट्टा मंडल के तुर्ती देहात में हाल ही में होने वाली तेज बारिश के बायस बीटी रोड
कलवट पानी में बह जाने के अलावा दीगर मकामात पर आमोदरफ्त मुस्तरद होने की इत्तला मुकामी सरपंच व नायब सरपंच ताहिर ने रियासती वजीर इमारत शोरा विमला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाने पर इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी करने की वजह से मसाइल का हल मुमकिन होने की बिना पर आज तुर्ती पर तामीर करदा चेक डैम की सतह में इजाफा होने के बाइस अवाम सैर तफरी का मरकज बन गया। इसीलिए तुर्ती सरपंच व नायब सरपंच ताहिर और वीडीसी मेंबरान गंगा रेड्डी सायन्ना ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने रियासती वजीर आला KCR व रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर एक अराजी के तनाजे से मुतालिक अट्रॉसिटी केस के इंदराज के बाइस ACP वेंकटेश्वर ने तहकीकात करने का किया इंकशाफ। ACP वेंकटेश्वर राव ने आज नवीपेट मंडल के मुकाम पर इकराजी के तनाजे से मुतालिक केस दर्ज करते हुए बताया कि कोनेपल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाली गायनी लता ने 5 साल पहले मंडल के मुकाम से आए हुए निजामुद्दीन को फ्रूट का कारोबार करने के लिए अराजी किराए पर देने के बाइस इन ताजिरों ने मालिक अराजी की जाली दस्तावेजात तैयार करके काबिज होने की लता ने इत्तला हासिल करके निजामुद्दीन से इस मुताले के ताल्लुक से बात करने की बिना पर गैर अखलाकी बर्ताव करने पर मालिक अराजी ने महकमे पुलिस में दरख्वास्त पेश। ACP वेंकटेश्वर ने दीगर पुलिस मुलाजमीन के हमरा मुकाम वारदात का जायजा लेते हुए तहकीकात करने का हिस्सा याकूब ने इंकशाफ के तहकीकात में नवीपेट ग्राम पंचायत सेक्रेटरी संदीप के पास से दीगर तमाम तरीन तफसीलात हासिल की गई। शहर के मेडिकवर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब फिर एक फर्द की जान जोखिम में। शहर के मेडिकवर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब फिर एक फर्द की जान जोखिम में आ गई। तफसीलात के मुताबिक पहली वैक्सीन की खुराक लेने वाले शख्स ने दूसरी वैक्सीन की खुराक लेने के लिए दरख्वास्त करने पर मेडिकवर हॉस्पिटल की तिब्बी अमले की जानिब से लापरवाही की बिना पर वैक्सीन की खुराक देने के बजाय कोविशील्ड देकर मुस्तहिक फर्द को डरो खौफ में मुब्तला कर दिया गया, जिस पर प्रदीप गुप्ता ने हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर्स की लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में कोई साइड इफेक्ट होने पर जिम्मेदारी किन पर आयद करने का इजहार किया और बताया कि कलेक्टर DMNHO फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए मेडिकवर हॉस्पिटल का जायजा लेकर लापरवाही में मुलविस तिब्बी अमले के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने की ख्वाहिश की। आने वालों को भी हमारी बात ही नहीं मान रहे, कुछ भी हुआ तो हम रेस्पॉन्सिबल है, मतलब लिख के दो बोले तो लिख के नहीं देते, हमारा स्टॉक बराबर है। ये हम आंखों से हम चारों पूरे 5 फैमिली मेंबर हम वहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे सामने कोविशील्ड दिए ये लोग, और जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन हमारा कोवैक्सीन का, ये मेरा 2nd डोज है, हम पहला डोज लिए कोवैक्सीन का और 2nd डोज ये लोग दिए कोविशील्ड का। कल के दिन हमारे फैमिली में किसको भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो क्या ये लोग जिम्मेदार है हॉस्पिटल वाले? और यहाँ पे कोई वीडियो कैमरा नहीं है, सर्वेलेंस कैमरा नहीं है कि रिकॉर्डिंग में अपन देख सके कि ये लोग सही इंजेक्शन दे रहे या नहीं दे रहे। यहाँ सेलर में खोल के रख दिए। మా దగ్గర వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏదైతే గుప్తా ఫ్యామిలీ ఏం ఫ్యామిలీ గుప్తా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా మేము రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఆల్రెడీ 2nd డోస్ కదా, ఓకేనా? రైట్, థ్యాంక్ యూ। आज से तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की इजराई। तेलंगाना में नए राशन कार्ड्स की इजराई का कल 26 जुलाई से आगाज होगा। महकमे सिविल सप्लाईज ने जयशंकर भोपालपल्ली जिले में अहल दरख्वास्त गुजारों को राशन कार्ड्स की इजराई का शेड्यूल तैयार किया। अवामी नुमाइंदों के हाथों नए राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आएगी। हुकूमत ने 8,65,000 दरख्वास्त गुजारों को जांच के बाद कार्ड्स की इजराई का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर KCR ने अहदेदारों को हिदायत दी कि कोई भी मुस्तहिक राशन कार्ड से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि पहले से मौसूला दरख्वास्तों की यकसवी के बाद नई दरख्वास्तों की जांच की जाएगी। वजीर सिविल सप्लाई को नए कार्ड्स की इजराई की निगरानी की हिदायत दी गई है। इन्होंने हकाम के साथ तकसीम के प्रोग्राम का जायजा लिया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कल्चरल टीम की जेर निगरानी में आर्मूर टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े बस स्टैंड, मार्केट व दीगर मुकामात पर मुकीम अवाम को कोरोना वैक्सीन व कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित से मुतालिक शौर बेदारी अमल में लाई गई।
जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कल्चरल टीम की जेर निगरानी में कोरोना वैक्सीन टीका कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित से मुतालिक आर्मूर टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़े बस स्टैंड, मार्केट व दीगर मुकामात पर मुक़ीम अवाम को शोर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक फर्द को कोरोना वैक्सीन की खुराक लेकर खुद और अपने अरकान खानदान को महफूज रखे और कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने वाले अफराद 84 दिनों के बाद दूसरी वैक्सीन की खुराक लेकर कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होने के ताल्लुक से बताते हुए माहौल को साफ सुथरा रखने का इंकशाफ किया। 28 जुलाई बरोज़े चारशंबे को सदरम कैंप का इनेकाद, माजूरीन से इस्तीफादे की ख्वाहिश। जिले रूरल डेवलपमेंट ओहदेदार चंदर ने अपने एक एलामी में बताया कि जारिया माह 28 जुलाई को जिले सरकारी दवाखाने निजामाबाद में सदरम कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। अलावाजी आइंदा माह 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त के अलावा माह सितंबर में 8 सितंबर, 15 सितंबर और 22 सितंबर को सदरम कैंप का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इन्होंने बताया कि सदरम कैंप में शिरकत के ख्वाहिशमंद माजूरीन मी सेवा के जरिए स्लॉट बुकिंग करना लाजमी है। स्लॉट बुकिंग कराने वाले अफराद को तारीख तय की जाएगी। मुकर्ररा तारीख पर सदरम कैंप में रुजू होते हुए इस्तीफादा कर सकते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न की बरसी तकरीब के पेश नजर सदर नशीन जिले परिषद विठल राव ने ZP दफ्तर में इनकी तस्वीर पर गुलाह अकीदत पेश की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत रत्न की बरसी तकरीब के पेश नज़र आज सदर नशीन जिले परिषद विठल राव ने ZP दफ्तर में इनकी तस्वीर पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में जिले सदर ATS श्रीनिवास, KCR सेवा दल जिले सदर रमन राव, कायदीन तेलंगाना शंकर, गोपाल नगेश, नीलम रेड्डी, अंजया, शेखर रेड्डी, मनोहर रेड्डी, नागाराव, शेखर राज व दीगर ने शिरकत की। मुख्तलिफ कोर्सेज की इंट्रेंस टेस्ट के लिए 4.31 लाख दरख्वास्तें वसूल। अगस्त में तमाम इंट्रेंस टेस्ट मुकर्रर, सितंबर में दाखिलों का अमल। रियासत में जारिया साल इंट्रेंस टेस्टों के लिए 431 लाख से जायद तलबा ने मुख्तलिफ इंट्रेंस टेस्टों के लिए दरख्वास्तें दाखिल की है। इसमें निस्फ से जायद दरख्वास्तें MSET के लिए दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। कोरोना बहरान के पेश नज़र हुकूमत पब्लिक इम्तहानात बोर्ड्स को मनसूख करते हुए तमाम तलबा को कामयाब करार दिया था, जिसमें इंटर सेकेंड ईयर के तलबा भी शामिल है, जिसका MSET दरख्वास्तों पर असर पड़ा है। तमाम सीट्स के लिए गुज़िश्ता साल 4.5 लाख दरख्वास्तें वसूल हुई थी। इस साल इन दरख्वास्तों की तादाद 4,31,691 तक पहुंच गई हैं। तकरीबन 26,000 जायद दरख्वास्तें वसूल हुई है। मज़ीद चंद टेस्टों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की मोहलत बरकरार है, जिसके नतीजे में मज़ीद दरख्वास्तों में इजाफा होने के इम्कानात है। गुज़िश्ता साल MSET के लिए 2,21,706 दरख्वास्तें दाखिल हुई थी। जारिया साल 2,50,057 दरख्वास्तें वसूल हुई है। आइंदा माह अगस्त में मुकम्मल इंट्रेंस टेस्ट मुनक़िद होंगे। 3 अगस्त को E-सेट का इनेकाद होगा। 4, 5, 6, 9 और 10 अगस्त को MSET इम्तहानात का इनेकाद होगा। 11 और 14 अगस्त के दरमियान PG E-सेट, 19 और 20 अगस्त को I-सेट, 23 अगस्त को लॉ-सेट, 24 और 25 अगस्त को 8-सेट के इम्तहानात मुनक़िद होंगे। जारिया तालीमी साल के लिए 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू करने की सहूलत फराहम की गई है। आम हालात में 1 सितंबर से नए तालीमी साल का आगाज होता है। कोरोना की वजह से शेड्यूल में तब्दीली हुई है। अगस्त में इनेकाद होने वाले इंट्रेंस टेस्ट के रैंक्स की बुनियाद पर तलबा के काउंसलिंग का अमल होगा। आखिर अगस्त से सितंबर के दरमियान तक काउंसलिंग का एहतमाम करने का इम्कान है। ओहदेदारों की जानिब से सितंबर के माह में तमाम कोर्सेज में दाखिलों का अमल मुकम्मल करने की तैयारियां की जा रही हैं। MSET इंजीनियरिंग के लिए 1,64,062 MSET एग्रीकल्चर के लिए 65,995 E-सेट के लिए 24,501 I-सेट के लिए 58,120 8-सेट के लिए 36,255 लॉ-सेट 3 साल के लिए 26,983 लॉ-सेट 5 साल के लिए 7,123 PG लॉ-सेट 3,065 PG E-सेट के लिए 21,916 PE सेट के लिए 3,671। इसी तरह जुमला 4,31,691 दरख्वास्तें वसूल हुई है। जिले निजामाबाद जज विक्रम के ज़ेरे सदारत में इंसाफ पर मबनी शौर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया।
जिले निजामाबाद जज विक्रम ने चेन्नई शॉपिंग मॉल के जेरे निगरानी में मुनक्किदा इंसाफ पर मबनी शौर बेदारी इजलास में शिरकत करते हुए कहा कि हुकूमत व खानगी सेक्टर में खिदमत अंजाम देने वाले खवातीन के साथ गैर अखलाकी बर्ताव, छेड़छाड़ व जुल्म व ज्यादती पर मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करने का इंकशाफ किया। ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా బయట ఉన్నా మీరు ఇంట్లో ఉన్నా అదే విధంగా మీరు షాప్ లో వర్క్ చేస్తున్నా ప్రతి దగ్గర కూడా రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అని అంటారు. ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు డిసిప్లిన్ గా ఉండాలి, పిల్లలు కానీ ఎవరైనా కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ. इख्तिताम से खबर नजर डालते आज के अहम सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिलों में बोनाल त्यौहार का जोश खरोश के साथ इनेकात अमल में लाया गया। बांसवाड़ा शहर में मुनक्किदा बोनाल त्यौहार में असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत करके अवाम को दी पुरखुलूस मुबारकबाद। साबिका वज़ीर आज़म व साइंसदान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की खिदमत नाकाबिले फरामोश। ZP चेयरमैन विठल राव ने ZP दफ्तर में मौजूद अब्दुल कलाम की तस्वीर पर गुलाहे अक़ीदत पेश की। TRS हुकूमत गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए अहद की पाबंद। बांसवाड़ा हल्का असम्बली में नए राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। हरित हरम के तहत दिए गए टारगेट को मुकम्मल करने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत जारी। MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान की जिले को आमद। अखलती इलाकों का दौरा करते हुए जलसे से किया खिताब। अराजी रजिस्ट्रेशन की कीमत में इजाफे के खिलाफ रियासती सतह पर रियल एस्टेट ताजिन का पुरजोर एहतजाज। जिले के कई कायदीन हैदराबाद में हुए गिरफ्तार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।